हेलो, हाउ आर यू? व्हाट्सएप। आज हम एंथ्रोपोलॉजी में एक नए टॉपिक के साथ शुरुआत करेंगे। ओके गाइस, टुडे वी विल डिस्कस kinship terminologies. So there are two types of kinship terminology. One is descriptive and the other one is classificatory. Now, what is descriptive system of kinship? Kinship, I discussed with you in the last video that kinship are group of relations that are based on biological as well as affinal relationship, that are based on consanguineous and affiliate relationships. Now, what is consanguineous? Consanguineous means biological relationship is meant by consanguineous relationship, and relationship that are based on marriage are called as affinal relationship. So kinship are socially recognized relationship and that are based upon blood relation and marriage relation or adoption or rituals. Okay, I gave two definitions of kinship by two anthropologists. One is uh, Fox Robinson and the other one is D.N. Mazumdar. Now discuss what is descriptive kinship. Here, descriptive kinship means lineal and collateral relatives are distinguished. Every relationship is distinguished from the other relationship. And classificatory kinship means here the lineal and collateral relationship are not distinguished. Okay, so there are different types. One is classification by linguistic structure, then classification by mode of use, and classification by range of application. So there are three types: classification by mode of use, classification by structure, classification by uh, application. Application, use, and structure. Now, by linguistic terms, kinship are classified as elementary, derivative, and descriptive term. And there is another, on the basis of linguistic term, we can differentiate as descriptive and elementary, derivative, and descriptive. Now, what is a descriptive term? Descriptive, when I say my father, my mother, then I am talking about my biological parents and no one else. Therefore, these two terms, father and mother, are called descriptive terminologies. Okay, so descriptive terminology is used to define blood relationship with a particular person, or this keeps the various relationship clear and distinguished from one another. Okay, so what is descriptive term? I have discussed you that here each and every relationship को एक नया और अलग नाम दिया जाता है. जैसे मैं बोल when I say my father, when I say my mother, I talk about my biological parents and no one else. So these father and mother are called as descriptive
terminologies. Means they are used to describe biological relationship, and they keep each relationship distinct from one another. Okay. Now then comes classification by mode of use. Now, what is mode of use? Now mode of use, kinship terms are classified in terms of address and terms of reference. So I have discussed with you kinship terms by mode of use, by linguistic structure, and by range of application. So kinship terms are also classified as classificatory terms. ओके इसमें क्या होता है कि दो रिश्तेदारों को, दो या दो से ज़्यादा रिश्तेदारों को हम कैटेगराइज कर देते हैं अंडर द वन टर्म. ओके लाइक अंकल हो गया, आंट हो गया, ब्रदर हो गया, सिस्टर हो गया. तो ये चीज़ें क्या है, ये चीज़ें हैं क्लासिफिकेटरी टर्म्स. ठीक है. इसमें मैंने इसे माई अंकल, तो वो मैंने इसे माई अंकल, तो उसमें क्या हो सकता है, माई फादर्स ब्रदर भी हो सकता है, माई मदर्स ब्रदर्स भी हो सकता है, और माई फादर्स फ्रेंड भी हो सकता है, इवन माई ऑन्ट्स हस्बैंड भी हो सकता है. सो इसमें क्या होता है कि इसमें ज़्यादा रिश्तेदारों को, दो या दो से ज़्यादा रिलेटिव्स को कैटेगराइज किया जाता है, मेंशन्ड बाय द सेम टर्म. दैट फॉर एग्जांपल मैंने इसे अंकल, तो वो मेरे पिताजी का भाई भी हो सकता है, मेरी मदर का भाई भी हो सकता है, या फिर मेरे फादर का फ्रेंड्स भी हो सकता है. अंकल कैन बी एनीथिंग. सो टर्म अंकल इज ए क्लासिफिकेटरी टर्म. सो इट इज called classification by range of application. Now let us, I have discussed with you descriptive terms, I have discussed with you classificatory terms, I have discussed the by mode of use, by linguistic terms, by range of application. ठीक है. And on the basis of linguistic structure, kinship terms are defined as elementary, descriptive and derivative. Okay. देन कम्स लेट अस डिस्कस. मैंने आपको किनशिप में जब पढ़ रहे थे हम, तो मैंने आपको दो चीज़ों का जिक्र किया था. तो एक तो था एल.एच. मॉर्गन की बुक थी सिस्टम ऑफ कॉन्सैंग्यूनिटी एंड एफिनिटी ऑफ ह्यूमन फैमिली. ठीक है. तो एक का हमने डिस्कस, ठीक है. और एक बुक थी एंशिएंट सोसाइटी, वो भी एल.एच. मॉर्गन की थी. दोनों की दोनों बुक्स जो है वो किनशिप के ऊपर स्टडी की हुई है, और इसमें किनशिप के बारे में बताया गया है. सिस्टम ऑफ कॉन्सैंग्यूनिटी एंड एफिनिटी ऑफ द ह्यूमन फैमिली एंड द एंशिएंट सोसाइटी. हमने एक और बुक पढ़ी थी, वो मेरे को उनका नाम याद नहीं आ रहा, आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ. हमने पिछली वीडियो में एक बुक और पढ़ी थी किनशिप के बारे में. ठीक है. उनका नाम मेरे को बताओ. तो हम क्या करते हैं, इन्होंने क्या किया जो है वो इरोक्यूज ट्राइब है, तो उसकी स्टडी की. किसकी स्टडी की? इरोक्यूज ट्राइब है, उसकी स्टडी करी इन्होंने. सो डिस्क्रिप्टिव सिस्टम में तो उसमें इन्होंने क्लासिफिकेटरी टर्म्स को दिया, और जो डिफरेंट पैटर्न्स हैं किनशिप के. ठीक है. तो किनशिप टर्मिनोलॉजीज के बारे में उन्होंने किनशिप टर्मिनोलॉजीज के बारे में मॉर्गन जी ने बताया. तो इन्होंने 6 तरह के जो है पैटर्न जो है वो डिस्कस किए कि किस तरह से किनशिप टर्मिनोलॉजीज को अगर हम डिफाइन करेंगे, तो 2 पैटर्न्स को डिस्कस किया इन्होंने, किनशिप टर्मिनोलॉजीज को डिस्कस किया. तो इन्होंने इरोकीज का जो एक अमेरिका के ट्राइब है उनके बारे में स्टडी किया. ओके. तो 6 पैटर्न इन्होंने आइडेंटिफाई किए. एक तो था हवाई सिस्टम, हवाई किनशिप मेथड था. एक था सुदानिश किनशिप सिस्टम था. एक था एस्किमो किनशिप सिस्टम था. और एक था इरोक्यूज किनशिप सिस्टम, जिनकी इन्होंने स्टडी की थी इसमें. और एक था क्रो सिस्टम था, और एक था ओमाहा सिस्टम. तो 3 जो है वो आइडेंटिफाई किए इन्होंने पैटर्न्स. 6 पैटर्न्स को आइडेंटिफाई किया मॉर्गन ने. सिस्टम ऑफ कॉन्सैंग्यूनिटी एंड एफिनिटी ऑफ ह्यूमन फैमिली एंड एंशिएंट सोसाइटी बुक लिखी थी एल.एच. मॉर्गन ने. उसमें क्या बताया इन्होंने बताया
हवाई किनशिप टर्म्स को डिस्कस किया। इन्होंने हवाई किनशिप टर्म्स को डिस्कस किया और इन्होंने डिस्कस किया इरोकियस किनशिप सिस्टम को डिस्कस किया। इन्होंने ओमाहा किनशिप टर्म्स को डिस्कस किया। इन्होंने सूडानीज किनशिप टर्म्स को डिस्कस किया। ओमाहा मैंने बताया, और इसमें था इरोकियस किनशिप टर्म्स को इन्होंने डिस्कस किया। इन्होंने प्रो को डिस्कस किया, ठीक है, एस्किमो पैटर्न को इन्होंने डिस्कस किया। तो हम इन चीज़ों की डिस्कशन करेंगे वन बाय वन। तो सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगा हवाई किनशिप टर्मिनोलॉजीज। हवाई किनशिप टर्मिनोलॉजीज क्या चीज़ है? तो इसमें क्या होता है कि जितने भी रिलेटिव्स होते हैं सेम सेक्स के, ठीक है, तो उनको एक ही टर्म के द्वारा रेफर किया जाता है। सेम सेक्स के रिलेटिव्स हैं तो उनको एक कॉमन टर्म दे दी जाती है जिसको हम बोलते हैं हवाई किनशिप टर्म। तो ये बेसिकली कौन सा सिस्टम हो इन्होंने अडॉप्ट किया? क्लासिफिकेटरी किया या डिस्क्रिप्टिव किया? मेरे को कमेंट सेक्शन पे बताओ। इन्होंने इसमें हवाई सिस्टम कौन सा सिस्टम अडॉप्ट करते हैं? ये क्लासिफिकेटरी सिस्टम अडॉप्ट करते हैं। तो हम इसमें देखेंगे कि फॉर एग्जांपल हवाई किनशिप में आप मान लीजिए आप ईगो हैं, एक ईगो आता है, इसमें उनके फादर मदर होंगे, ठीक है। तो अब जो ईगो के फादर हैं उनके मान लो कि 2 भाई हैं, ठीक है। तो मदर के जो हैं आगे जो बहनें हैं, ठीक है, वो बहनें हैं, उनकी 2 बहनें हैं मान लीजिए, और 2 फादर के 2 भाई हैं और मदर की 2 बहनें हैं। तो और इनको हम क्या करते हैं? एक ही कॉमन टर्म देते हैं। जैसे आप अपने फादर को फादर बुलाओगे, फादर के भाई को भी फादर बुलाओगे, और उसकी ठीक है, हाँ, और सेम सेक्स के है ना, और अगर मदर का भाई है तो उसको भी आप फादर ही बुलाओगे। और अगर आप जो फादर की सिस्टर हैं तो आप उनको क्या बोलोगे? आप उनको मदर बोलोगे। और जो मदर की मदर है, सिस्टर है, मदर की अगर सिस्टर है, ठीक है, तो उनको भी आप क्या बोलोगे? मदर ही बोलोगे। मीन्स जो मेल होंगे सारे सेम जनरेशन में फादर बन जाएंगे, और जो फादर की मदर की जनरेशन के जितने भी लोग होंगे वो मदर बन जाएंगे। ओके, हाँ, अब ये हमने डिस्कस किया। अब ईगो के ब्रदर हैं, ब्रदर भी होंगे और सिस्टर भी होंगे, ठीक है। तो अब जो उसके हम बोलते हैं मदर, या भाई हैं फादर के, या मदर हैं, जो उनके मदर के भाई हैं, या फादर के भाई या बहन हैं, या मदर के भाई या बहन हैं, उनके आगे बच्चे होंगे तो वो किस जनरेशन के होंगे? वो सेम जनरेशन के होंगे जिस जनरेशन का ईगो है। तो उनको हम क्या बोलते हैं? अगर तो लड़का होगा तो ब्रदर बोलेंगे, अगर लड़की होगी तो सिस्टर बोलेंगे। आई थिंक, आई होप मैंने आपको अच्छे तरीके से, आपको सिंपल तरीके से, लेमैन लैंग्वेज में मैंने हवाई किनशिप सिस्टम को आपको डिफाइन किया है। तो इसमें क्या होता है? ये एम्बिलिनियल डिसेंट को फॉलो करते हैं। अब एम्बिलिनियल डिसेंट क्या होता है? मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ कि एम्बिलिनियल डिसेंट क्या होता है। एम्बिलिनियल डिसेंट होता है कि जहाँ पे आप एक तरह के डिसेंट को आप एक्सेप्ट करते हो, या फिर आप फादर साइड के वाली साइड से लाइन ऑफ डिसेंट को फॉलो करते हो, या फिर आप मदर वाली साइड से आपके पास चॉइस होती है कि मदर वाली साइड से आप डिसेंट को करते हो। ओके, इनको हम बोलते हैं तो एम्बिलिनियल डिसेंट। और हमने एग्जांपल्स किसकी स्टडी की थी? एक्स सामोआस ऑफ साउथर्न पैसिफिक में एम्बिलिनियल डिसेंट है। और हवाई सिस्टम जो है ये भी क्या है? ये एक पैटर्न को फॉलो करते हैं जिनको हम बोलते हैं हवाई किनशिप। तो जो एक्स सैमोन्स है पैसिफिक के, वो भी हवाई किनशिप को फॉलो करते हैं, एम्बिलिनियल डिसेंट को फॉलो करते हैं। और इनकी एग्जांपल जो पोलिनेशिया की आइलैंड्स हैं, हवाई की आइलैंड्स है, एक्स सैमोन्स है, पैसिफिक आइलैंड्स की है,
वहाँ पे आपको हवाई किनशिप सिस्टम देखने को मिलता है। उसके बाद हम दूसरा मैंने बताया दूसरा कौन सा पैटर्न स्टडी किया एल एच मॉर्गन ने, एक सुदानीस किनशिप को स्टडी किया, सुदानीस किनशिप को स्टडी किया। इसमें क्या होता है कि सुदानीस जो सिस्टम है, पहले वाला जो सिस्टम है हवाई सिस्टम, वो है क्लासिफिकेटरी सिस्टम, और सुदानी सिस्टम आप याद रखना ये है डिस्क्रिप्टिव सिस्टम। अब सुदानी सिस्टम है क्या, तो हाउ ये कैसे अपने जो रिलेटिव्स हैं उनको कैसे ये बुलाते हैं, क्या उनके लिए टर्म यूज करते हैं। एक तो हो गया कि डिस्क्रिप्टिव टर्म ये यूज करते हैं, और क्या टर्म ये यूज करते हैं हम देखते हैं। देखो सेम फादर है, ईगो का फादर भी है मदर भी है, उसकी मदर के भाई बहन भी हैं, और फादर के भाई बहन भी हैं, और जो उनके जो फादर है, जो फादर के आगे भाई हैं बहन है, उनके भी आगे दो दो बच्चे हैं, एक लड़का है एक लड़की है। तो दूसरे में भी आप लोग डायग्राम की फॉर्म में ये आपको डिस्क्राइब करना पड़ेगा। तो सुदानिस में आप जैसे मदर है, जैसे मदर के आगे भाई भी है बहन भी है, उनके आगे बच्चे भी हैं। तो क्या होता है हर एक के लिए, ये हर एक रिश्तेदार के लिए, किन्स के लिए ये डिफरेंट टर्म का यूटिलाइज करते हैं, डिफरेंट टर्म से उनको बुलाते हैं, डिफरेंट टर्म्स को ये यूज करते हैं। ओके, तो उसमें आता है सबसे पहले फादर मदर को देखिए। अब जैसे फादर का भाई है तो उसको हम बोलेंगे फादर्स ब्रदर, और अगर फादर की सिस्टर है तो बोलेंगे फादर सिस्टर, और मदर का भाई है तो मदर्स फादर बोलेंगे, और अगर जो मदर की भाई है तो उसको हम बोलेंगे मदर्स ब्रदर, मदर्स ब्रदर, फादर्स ब्रदर, फादर्स सिस्टर, मदर्स ब्रदर, मदर सिस्टर। जो किन्स हैं सेम जनरेशन, फादर और मदर की सेम जनरेशन के किन्स हैं, उनको हम किससे डिनोट करेंगे, या तो वो फादर का ब्रदर होगा, या फादर का सिस्टर होगा, या सिस्टर का ब्रदर होगा, या सिस्टर का सिस्टर होगा। ये है सुडानीज का ऊपर। अब हम ईगो की जनरेशन के लोग देख लीजिए, भाई बहन उसके भी हैं, तो अपने भाई को वो बोलेगा ब्रदर और सिस्टर को बोलेगा सिस्टर। लेकिन अगर वो जो है फादर वाली साइड से भाई या बहन है, ठीक है, तो उनको क्या बोलेगा, अगर तो फादर का भाई है तो क्या हो गया, फादर वाली साइड से चल रहे हैं तो पैट्रिलेटर यूज कर रहा है, और अगर फादर का भाई है तो पैट्रिलेटरल पैरेलल कजन बोलेगा उनको, पैट्रिलेटरल पैरेलल कजन बोलेगा। वो लड़की भी हो सकती है लड़का भी हो सकता है, उसको अब ये बोलेगा पैट्रिलेटरल पैरेलल कजन, ठीक है। उसके बाद अगर फादर का सिस्टर है तो क्या बोलेगा, फादर की सिस्टर है तो पैट्रिलेटरल क्रॉस कजन्स, ठीक है। और सेम अगर मदर का भाई है, ठीक है, तो मदर के भाई के बच्चों को क्या बोलेगा, अब मदर का भाई है तो मैट्रिलेटरल क्रॉस कजन, और मदर का अगर सिस्टर है तो मैट्रिलेटरल पैरेंट कजन्स का नाम देगा, ठीक है। तो इसमें सुदानिस में हर एक जो है दो रिलेटिव्स को हम सेम टर्म से डिफाइन नहीं करते, हर एक रिलेटिव्स को हम डिफाइन करते हैं अलग अलग टर्म के साथ। तो मैंने आपको सुदानी सिस्टम को भी मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। ये सिस्टम आपको सूडान में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो कुछ जो सोसाइटीज़ होंगी ना, जो पैट्रीलिनियल सोसाइटीज़ होंगी, तो वहाँ पे आपको पैट्रीलिनियल सोसाइटीज़ में क्या होता है कि जो आपका जो एंसेस्ट्री है वो किस लाइन में फॉलो करेगी, वो आपको फादर वाली लाइन से वो उसको आपको देखने को, मदर वाली फादर वाली लाइन से आपको पैट्रीलेटरल डिसेंट जो है वो देखने को मिलेगा। डिसेंट जो है वो फादर वाली लाइन में चलेगा, फादर वाली लाइन से फॉलो किया जाएगा डिसेंट। जो इंसेस्टर्स हैं जो फादर वाली लाइन से को अपने प्रॉपर्टी को जो फॉलो करेगी वो फादर वाली साइड से करेगी। तो आपको सुदानी सिस्टम को पैट्रीलिनियल सोसाइटीज़ में देखने को मिलता है। तो पैट्रीलिनियल सोसाइटीज़ में मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, सूडान में दिखेगा, जो टर्की में दिखेगा। आप मैप के थ्रू भी आप बता सकते हो। उसके बाद हमने
तो एस्कीमो सिस्टम यूज किया। एस्कीमो सिस्टम क्या है? ये भी एलिस मॉर्गन ने स्टडी किया, सिस्टम ऑफ कॉन्सैंग्यूनिटी एंड एफिनिटी ऑफ ह्यूमन फैमिली और सोशल स्ट्रक्चर में। उसमें एंशिएंट सोसाइटी भी एलिस मॉर्गन ने एक्सप्लेन किया। तो हमने रेड इंडियंस की एग्जांपल देखी, हमने ओमाहा ऑफ गाना, अशांति ऑफ गाना के बारे में हमने स्टडी किया, ठीक है। एक्स सैमुअन्स ऑफ पैसिफिक या सैमुअन्स ऑफ सेमी पैसिफिक, तो ये इनमें हमने डिसेंट को स्टडी किया। डिसेंट में जो एग्जांपल हमें देखने को मिलती है, पैटेरियन डिसेंट में मेडिटेरेनियन डिसेंट भी हमने देखा। तो मेडिटेरेनियन डिसेंट तो मैंने बताया आपको, ये ट्रोबारियन आइलैंडर्स में होता है, और पैटेरियन डिसेंट आपको कहीं ना कहीं आपको इंडियन मॉडर्न सोसाइटीज़ में भी देखने को मिलेगा, और बड़ी सारी जो है ट्राइबल सोसाइटीज़, वहाँ पे भी आपको पैट्रिलिनियल डिसेंट देखने को मिलेगा। अब कमेंट सेक्शन में बताएं पैट्रिलिनियल डिसेंट किन सोसाइटीज़ में बताया जाता है। 3 सोसाइटीज़ का नाम मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएं, ठीक है। उसके बाद आता है एस्कीमो। एस्कीमो जो है, एस्कीमो क्या करते हैं, ये क्लासिफिकेटरी टर्म भी यूज़ करते हैं और डिस्क्रिप्टिव टर्म भी यूज़ करते हैं। देखो सेम, आप ईगो के फादर मदर है और बाई ब्रदर है, आपने डायग्राम में उनको प्रेजेंट करना है, ठीक है। कहाँ पे डबल एरो यूज करना है, कहाँ पे सिंगल लाइन यूज करनी है। तो फादर के ब्रदर भी है, सिस्टर भी है, और मदर की ब्रदर भी है, सिस्टर भी है। इसमें क्या है, मिक्स है, डिस्क्रिप्टिव भी है और वो है डिस्क्रिप्टिव भी है, और जो है क्या है, आपको क्लासिफिकेटरी भी देखने को मिलेगा। अगर तो फादर के भाई है तो उसको अंकल बोलेंगे, मदर का भाई है उसको अंकल बोलेंगे। तो ये क्या है, कहीं ना कहीं क्लासिफिकेटरी है। मदर के साइड भी, फादर के साइड के जो भाई हैं वो अंकल बोलेंगे, और अगर आप पेरेंट के सिस्टर हैं या फिर फादर की सिस्टर हैं या फिर मदर की सिस्टर हैं, तो उनके दोनों के लिए हम आंटी यूज़ करते हैं। तो क्लासिफिकेटरी भी देखने को मिल रहा है हमें। उसके बाद जो ईगो है, उसके आगे भाई बहन है उनको वो ब्रदर और सिस्टर बोलेगा, और बाकी जो उसके चाचा के लड़के हैं या फिर चाचा के लड़के हैं या फिर बुआ के लड़के हैं या फिर मासी के लड़के हैं या फिर मामा के लड़के हैं, तो उनके लिए वो कजन्स का इस्तेमाल करेगा, उनके लिए एक ही टर्म इस्तेमाल करेगा, कजन। तो क्लासिफिकेटर भी देखी, अपने सगे जो हैं उनको बोलेगा ब्रदर और सिस्टर, बहुत डिस्क्रिप्टिव भी देखने को मिली। अपने फादर मदर को फादर मदर बोलेगा, और जो कहीं मिक्सर है जहाँ पे डिस्क्रिप्टिव भी है और आपको क्या देखने को मिलेगा, आपको क्लासिफिकेटरी भी देखने को मिलेगा। तो इसमें हो गया एस्कीमो। देखो कुछ ऐसे हैं, कोलेटरल रिलेटिव्स कौन से हो गए, लीनियर रिलेटिव्स कौन से हो गए, जो कि डायरेक्टली रिलेटेड हो। लीनियर हो वो डायरेक्टली रिलेटेड हो, और कोलेटरल हो गए जो डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है, ब्लड से है साथ रिलेटेड है लेकिन डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है। डायरेक्टली रिलेटेड हमको हम बोलते हैं लीनियर रिलेटिव्स, और दूसरों को हम बोलते हैं कोलेटरल रिलेटिव्स। तो स्कीमों को भी मैंने डिस्कस कर दिया आपके साथ। ये बड़ी सारी सोसाइटीज में देखने को मिलता है। एस्कीमो जो है, इनुइट या एस्कीमो जो है, तो ये यहाँ पे ये सिस्टम जो देखने को मिलेगा। तो वर्ल्ड की जो 10% सोसाइटीज़ है, तो आपको ये सिस्टम आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद हम बात करते हैं, हमने हवाई डिस्कस कर दिया है ना। हवाई क्या था, सबसे क्लासिफिकेटरी था। एस्कीमो सुडानीज क्या था, ये डिस्क्रिप्टिव था। उसके बाद सुडानीज क्या था, डिस्क्रिप्टिव था। उसमें एस्कीमो हमने डिस्कस किया, ये डिस्क्रिप्टिव भी है और क्लासिफिकेटरी भी है। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं इरोक्यूज। इरोक्यूज का हमने डिस्कस किया। इरोक्यूज भी क्या है, बेसिकली ये भी क्या करते हैं, इनमें भी क्लासिफिकेटरी टर्म्स भी हैं और डिस्क्रिप्टिव टर्म्स भी हैं। तो आप इनमें देखोगे, आप इनमें देखोगे कि इसमें सेम आपने डायग्राम बना देनी है। फादर है, ईगो के मदर है, ईगो के भाई ब्रदर है, ईगो के सिस्टर है, ईगो का आगे जो फादर है उनके आगे ब्रदर सिस्टर हैं, और उनके भी जो मदर है उनके भी आगे ब्रदर सिस्टर हैं। तो उनके फिर आगे बच्चे हैं, जैसे चाचा के बच्चे भी हैं, ताऊ के बच्चे भी हैं, बुआ के बच्चे भी हैं और मामा के बच्चे भी हैं। तो ठीक है, तो अब मैं बताऊँगा जो इसमें क्या होता है, इरोक्यूज सिस्टम में क्या होता है। तो इरोक्यूज सिस्टम जहाँ तो आप इसमें देखोगे, इसमें
अगर देखो कितना ये यूनिक है, थोड़ा डिफरेंट भी है इरोक्यूज, थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करना। जो ईगो के फादर हैं उसके जो भाई होंगे, ताऊ होंगे या चाचा होंगे, उनको वो फादर ही बोलेगा। और मदर की बहन होएगी, उनको वो मदर ही बोलेगा। हाँ, अगर मदर का भाई होगा या फिर उल्टा क्रॉस, मदर का भाई होगा या फिर फादर का भाई होगा, फादर का भाई होगा वो तो फादर होगा, फादर की सिस्टर होगी तो उनको वो आंटी और अंकल करके पुकारेगा। अगर सेम जनरेशन के होंगे ना, फादर के भाई को वो फादर ही बोलेगा, मदर की सिस्टर को वो मदर ही बोलेगा, ईगो। ठीक है, उसके बाद अब बच्चों की बात कर लें। फर्स्ट जो जनरेशन है वो उनसे अब जो उसकी फादर की जनरेशन है या फिर जो उसके अब प्री जनरेशन है, उसमें जो फादर वाली साइड से जो फादर बने होंगे ना, जो पापा के भाई होंगे, उनके बच्चों को वो ब्रदर सिस्टर ही बोलेगा। और जो ऊपर जो आंटी होएगी उनको वो कजन्स बोलेगा, उनके बच्चों को कज़न बोलेगा। और जो ऊपर अंकल होएंगे उनको वो कज़न बोलेगा, आंटी होएगी अंकल होएगी कज़न बोलेगा। और अगर मदर होएगी तो उनको वो फादर सिस्टर और ब्रदर ही बोलेगा। ठीक है, तो ये इरोक्वियन सिस्टम भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, बड़ा ही सिंपल है जे। इसको आपको समझने की कोशिश करोगे तो आपको बड़े ही अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। अगर एग्जाम में आएगा तो आप ब्यूटीफुली इसको एक्सप्लेन कर सकते हो, बट आपने एग्जाम्पल्स और केस स्टडीज आपने कोड करनी है। देखो, मैंने आपको बताया कि हवाई सिस्टम कहाँ पे, जो सुमाओ आइलैंड है पैसिफिक ओशन में, या फिर हवाई में ये सिस्टम को अडॉप्ट किया जाता है। सुदानी सिस्टम आपको सूडान में देखने को मिलेगा, इजिप्ट में देखने को मिलेगा। एस्किमो सिस्टम आपको इनुइट और एस्किमो इनको फॉलो करते हैं। और आपको जो इरोकी सिस्टम है, ठीक है, इरोकी अमेरिकन ट्राइब्स है, तो वहाँ भी आपको ये चीज़ें देखने को मिलेंगी। उसके बाद आपको देखने को मिलेगा क्रो। अब क्रो क्या है? क्रो में इसका आपको रिलेट करना है इरोक्यूस के साथ। ठीक है, इरोक्यूस के साथ ये कैसे रिलेट करता है? बेसिकली आपने जब क्रो पढ़ोगे आपने देखना है मैट्रिलिनियल सोसाइटी। ठीक है, तो मैट्रिलिनियल सोसाइटी की अगर आप देखोगे तो ये रिलेटेड है इरोक्यूस से। अगर तो फादर का भाई है तो उसको तो वो बोलेगा फादर। अगर वो फादर की सिस्टर है तो उसको वो आंटी ही बोलेगा। तो ठीक है, और अगर ये आपको देखने को मिलेगा मैट्रिलिनियल बेस्ड, जो है मैट्रिलिनियल सोसाइटीज हैं जो क्रो की, वहाँ पे आपको ये देखने को मिलेगा। और जो अगर फादर की मदर की अगर सिस्टर है तो उसको वो मदर ही बोलेगा, लेकिन अगर मदर के भाई हैं उसको वो अंकल ही बोलेगा। ठीक है, अंकल मदर, फादर फादर आंटी। तो जो इरोक्यूस और क्रो में क्या सिस्टम है, जो फादर की जनरेशन के होंगे या मदर की जनरेशन के जो रिश्तेदार होंगे, उसके भाई बहन होंगे, तो उनके उनका और इरोक्यूस का और क्रो का सिमिलर है। लेकिन जब हम नीचे आते हैं, जब हम बात करते हैं, ऊपर हमने देखा अगर फादर जिसको उसने फादर बोला है तो उनके बच्चों को वो सिस्टर ब्रदर ही बोलेगा। ठीक है, तो ऊपर भी, ऊपर जब आंटी है तो जो मदर है, मदर को भी वो क्या बोलेगा? सिस्टर और ब्रदर बोलेगा। अंकल है तो उनको भी कजन बोलेगा। हाँ, अगर फादर की सिस्टर है, फादर की जो सिस्टर है ना, बाकी सेम रहेगा। फादर की जो सिस्टर होगी उसको आंटी बोलेगा, लेकिन उनके जो बच्चे होंगे ना उनको वो कजन नहीं बोलेगा, उनको वो अंकल और आंट बोलेगा। देखो, जो इरोक्यूस है वो क्रो जो है वो इरोक्यूस से पूरा मिलता जुलता है किनशिप सिस्टम। क्रो जो है इरोक्यूस से पूरा मिलता जुलता है। फर्क कहाँ पे आता है? क्रो के केस में जो फादर की सिस्टर होती है उनको हम आंटी बोलते हैं, लेकिन उनके जो बच्चे होते हैं उनको वो अंकल आंटी ही बुलाता है, उनको आंटी ही बुलाता है, और भाई को फादर बुलाता है। ठीक है, आंट और फादर बुलाता है, ये फर्क है। ओके, तो थोड़ा सा आपको ये समझना पड़ेगा इसको। ठीक है, देखो फादर की सिस्टर है,
क्रो का थोड़ा सा कम्प्लेक्स है इरोक्यू से। वहां पे तो सिंपल मैंने आपको बता दिया था। अब इसमें कम्प्लेक्स क्या है, जो आंटी है ना, फादर वाली साइड से जो आंटी है, उनके बच्चों को वो क्या बोलेगा, उसकी बेटी को वो बोलेगा अंकल, और उसके बेटे को वो बोलेगा वो फादर। लेकिन जो मदर की जो सिस्टर है, जो है ना, मदर की जो सिस्टर है, उनकी बेटी को वो बोलेगा सिस्टर और ब्रदर। उसकी वो सिस्टर और ब्रदर ही बोलेगा, सिस्टर और ब्रदर ही बोलेगा। उनकी जो फादर है, उसके बच्चे होंगे तो वो भी ब्रदर सिस्टर कहलाएंगे। मदर वाली साइड से भी जो होंगे वो भी ब्रदर सिस्टर कहलाएंगे। ठीक है, अंकल वाली साइड से होंगे तो कजन कहलाएंगे। लेकिन क्रॉस सिस्टम में सिर्फ जो आंटी का केस है ना, जो फादर वाली साइड से आंटी है, उसके बच्चों को वो मेल होगा तो फादर बोलेगा, और बेटी होगी तो आंटी बोलेगा। वहां पे आंटी और अंकल लिख देना आपने। तो ब्रदर और कजन की जगह आपने अंकल और आंटी लिख देना है। आंटी और फादर लिख देना है ना, आंटी और अंकल नहीं लिखना, अंकल और फादर लिख देना आपने, फादर और ऑन्ट लिख देना आपने। ठीक है, उसके बाद लास्ट हम डिस्कस करते हैं ओमाहा। ओमाहा, ओमाहा क्या है बेसिकली, ये भी इरोक्यू से मिलता जुलता है। क्रो जैसे मिलता था ना इरोक्यू से, तो ओमाहा भी जो है वो इरोक्यू से मिलता है। इसमें आप देखोगे, जो फादर वाली साइड से आंटी थी, उनको हम कजन ही बोलेंगे, जैसे ऊपर बोला था। लेकिन जो मदर वाली साइड से जो भाई अंकल है, उनके बच्चों को आप, बेटे को आप अंकल ही बोलोगे, और सिस्टर को मदर बोलोगे। ठीक है, अंकल एंड मदर, ऊपर आंट एंड फादर। तो तीन जो है आपस में रिलेटेड है। पहले इरोक को आपने समझना है, इरोक को आपने एक्सप्लेन किया। जब इरोक को एक्सप्लेन किया, फिर आपने एक्सप्लेन करना है आपने क्रो को एक्सप्लेन करना है। तो सिमिलर आपने जो इरोक का लिखा है वही क्रो का लिखोगे। लेकिन जो फादर वाली साइड से अंकल होंगे, उनको, उनके बच्चों को आप रिप्रेजेंट कर दोगे आंटी और फादर, ये क्रो के केस में। और लास्ट जो हमने डिस्कस किया ओमाहा, ओमाहा सेम आप इरोकिस वाला लिखोगे। पहले इरोकिस आपने लिखा होगा, तो आपने इरोकिस पे चले जाना है। तो इरोकिस पे जब जाओगे तो आपने जो ओमाहा है उसको आपने क्या लिखना है, ओमाहा के केस में आपने लिखना है जो मदर वाली साइड से जो अंकल होंगे ना, उनके बच्चों को आपने क्या बोलना है, मदर और अंकल बोलना है आपने, अंकल और मदर बोलना है, आंटी और फादर बोलना है, या फिर मदर और अंकल बोलना है आपने। ठीक है, तो ये सिस्टम है। इरोक्यूज को आपने बेस बना लेना है। उसके बाद फिर आपने ओमाहा डिस्कस, क्रो को डिस्कस करना है, फिर उसके बाद ओमाहा को डिस्कस करना है। तो उसके ऊपर आ गया आपका एस्किमो आ गया, फिर सुडानीस आ गया, और फिर हवाई आ गया। तो ये है किनशिप टर्मिनोलॉजी। ठीक है, तो मैंने आपको एक्सप्लेन करके बता दिया कि क्या क्या है। आप इसको सेल्फ स्टडी भी करेंगे। अब आप इजीली सेल्फ स्टडी करके अच्छे से चीज़ों को ग्रास्प कर सकते हैं। देखिए, आपको इस तरह से पढ़ना है कि आप एग्ज़ाम में रिप्रोड्यूस कर सको, रिकॉल कर सको। अगर आप रिकॉल नहीं कर पाओगे, रिप्रोड्यूस नहीं कर पाओगे, तो पढ़ने का फ़ायदा कुछ नहीं होगा और मार्क्स नहीं आएंगे। आप रिवीजन पे ज़्यादा फोकस करें। यू फोकस ऑन रिवीजन, फोकस ऑन मेकिंग शॉर्ट नोट्स। उन चीज़ों के नोट्स बनाओ जो चीज़ें याद नहीं रहती हैं, और उनको बार बार पढ़ो। देन यू विल लर्न एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली। सो देर आर, हमने 6 डिफरेंट जो सिस्टम थे वो हमने एक्सप्लेन किए। पहले हवाई सिस्टम को एक्सप्लेन किया, फिर हमने सुडानी सिस्टम को एक्सप्लेन किया,
ठीक है। फिर हमने एस्किमो सिस्टम को एक्सप्लेन किया, उसके बाद इरोक्यूज को एक्सप्लेन किया, उसके बाद क्रो सिस्टम को एक्सप्लेन किया, और लास्ट में हमने ओमाहा सिस्टम को एक्सप्लेन कर दिया। ओके। नो हम एक सब टॉपिक और पढ़ते हैं जिसका नाम है किनशिप बिहेवियर। नो व्हाट इज किनशिप बिहेवियर? कि देखो होता क्या है, किनशिप क्या करता है, हमें रिलेटिव्स के साथ किस तरह का व्यवहार करना होगा, किस तरह से हमारा वे ऑफ टॉकिंग कैसा होगा, किस तरह से हम उनको ट्रीट करेंगे, उनसे बात कैसे करेंगे, ये हमें गाइड प्रोवाइड करता है किनशिप सिस्टम। हमें फैमिली सिस्टम भी हमें गाइडेंस प्रोवाइड करता है, कॉपरेशन इंश्योर करता है, इकोनॉमिक कॉपरेशन इंश्योर करता है, हमें पार्टनर सीख करने को हमें प्रोवाइड करता है। जैसे कुछ एंडोगेमस ग्रुप हैं, एक्सोगेमस ग्रुप हैं, तो हमें गाइडलाइन प्रोवाइड करता है कि हमने कहाँ शादी करनी है, कहाँ हम कर सकते हैं, कहाँ पे नहीं कर सकते। तो किनशिप बिहेवियर भी हमारे ये एक किस्म से जो किनशिप है जो हमारे बिहेवियर को मॉनिटर करती है और हमें गाइडलाइंस प्रोवाइड करती है, क्योंकि हम रिलेटिव के लिए बिहेवियर, हर एक रिलेटिव के लिए बिहेवियर, द बिहेवियर ऑफ an individual towards different relatives is not same. It has to be different, and it is different. And our behavior depends upon the culture, and our behavior varies from society to society. Let us take one mode of behavior is avoidance. Means what a married wife or married woman or individual who are related to each other, they observe a distant towards father-in-law, mother-in-law, daughter-in-law, or father-in-law, daughter-in-law, mother-in-law, and younger brother's wife. These are called avoidance. We individual have to have certain distant behavior when it comes to interacting with certain categories of relatives like father-in-law, daughter-in-law, mother-in-law, and younger brother's wife. Okay, so in the same way, women also tries to avoid the presence of her son-in-law. Okay, there is an avoidant relationship or or there is some sort of distant has to be maintained. Then another is joking relation. So it is the opposite of avoidance relationship. Okay, तो देर आर सर्टन किन्स रिलेशंस हैं, तो वहाँ पे आपको एक्सट्रीम फेमिलियरिटी देखने को मिलती है, ज़्यादा फेमिलियर होते हैं वो, तो वो एक दूसरे के ऊपर जोक भी क्रैक कर सकते हैं और टीज भी कर सकते हैं। ओके, और ये बेसिकली जो जॉकिंग रिलेशनशिप किस में होता है, ये मैन में होता है एंड हिज वाइफ्स यंगर सिस्टर के साथ जॉकिंग रिलेशन हो सकता है, और बिटवीन ए वुमेन एंड हेयर हस्बैंड्स यंगर ब्रदर, उसके साथ भी जॉकिंग रिलेशनशिप हो सकता है। अब क्रॉस कजन्स हैं, उनके साथ भी जॉकिंग रिलेशनशिप हो सकता है। ग्रैंड पेरेंट्स के साथ भी आप जॉकिंग रिलेशनशिप कर सकते हैं। अब ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ भी आप जॉकिंग रिलेशनशिप मेंटेन कर सकते हैं। तो जॉकिंग रिलेशनशिप जस्ट ऑपोजिट टू अवॉइडेंस रिलेशन। इन जॉकिंग रिलेशनशिप a woman can crack a joke on her husband's younger brother, or a man can crack or tease a joke on wife's younger sister, or joking relationship can be maintained
between grandparents or grand children. Okay, so I have discussed with you कि from here it has been becoming clear that the behavior of an individual, of human being or living species towards different categories of relatives, kinships are always different. Then next is avunculate. Now what is avunculate? Avunculate means होता क्या है? तो इट सच टाइप ऑफ बिहेवियर इज एग्जिबिटेड बाय ट्रोबरियन आइलैंड. ट्रोबरियन आइलैंडर्स जो होते हैं मेलानेशिया में, वो अवनकुलेट रिलेशनशिप करते हैं. ठीक है, अवनकुलेट. अब अवनकुलेट क्या होता है कि इसमें क्या होता है कि जो मैटरनल अंकल होता है वो रोल प्ले करता है इसका फादर का. ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि इसकी जो नीस होती है या नेफ्यू होता है, नीस एंड नेफ्यू जो है वो मैटरनल अंकल के कंट्रोल में रहते हैं और वो ही अज्यूम्स द रोल ऑफ फादर टुवर्ड्स हिज नीस एंड नेफ्यू. ओके, तो कजन्स. देन कम्स avunculate is over now. Then amitate. What is amitate? Amitate is similar to avunculate, है ना? And it is found among some sort of patrilineal societies. Let us see here. Father's sister gets more respect and prime importance. Okay, so she is more than a mother to her niece and nephew, and father's sister exerts some authority on their nephew and niece. So avunculate and amitate. Avunculate, here in avunculate, maternal uncle has an authority over his nephew and niece, where in case of amitate, father's sister has some authority over his nephew and niece, and she is more than a mother to her nephew. And then comes cowade. avunculate हो गया, amitate हो गया, then comes cowade. cowade में क्या होता है कि cowade क्या होता है कि जब when wife gets pregnant, husband is required to follow, or wife is required to follow the process of imitate the process of pregnancy. Husband also imitate the process of pregnancy. He also leads passive life, inactive life, and also imitates the taboos, because pregnant wife has to follow, has to has to follow some taboos, and her husband also is required to follow the same taboos. The Todas have practice of cowade, and Todas husband imitate the wife. Todas lead inactive life and also follows the taboos prescribed by the society. Then comes tactonymy. Tactonymy also a kind of behavior, kinship behavior. So in many rural societies in India, okay, to call, don't take the name of husband, instead they say father of her child. Okay, हम सुने, we come across and hear father of her child. This is called tactonymy. So tactonymy in many rural societies of India, here wife don't utter the name of her husband, instead
he calls him by saying father of Munna, father of Chunnu. Okay, so Taxonomy is practiced in many rural societies, and there are some tribal societies like Khasis of Meghalaya. They also practiced taxonomy. So let us recall this kinship behavior one by one. First is avoidance. Okay, avoidance. I have discussed with you. Then comes joking relationship. It is just opposite to avoidance. Then comes avunculate. Avunculate means maternal uncle plays the role of father. Imitate means father sister plays the role of mother. Covert. Covert means husbands imitate the behavior of pregnant wife. Imitate, uh, covert, avunculate, imitate covert, and then lastly taxonomy. Taxonomy, covert is practiced by Todas and taxonomy is practiced by Khasis of Meghalaya. We have to quote the name of tribal societies. हमने डिस्कस कर लिया ट्राइबल किनशिप बिहेवियर. Okay. So now let us discuss briefly about kinship in India. Okay. So we have clan exogamy and caste endogamy. Okay. Murdoch has given some 8 primary and 33 secondary kings, and there are possibly 151 tertiary kings. So मर्डॉक ने क्या बताया है? मर्डॉक ने बताया है 8 जो है वो प्राइमरी किंग्स होते हैं और 33 ये सेकेंडरी फैक्ट्स आपको क्वेश्चन में लिखना पड़ेगा. 8 प्राइमरी किंग्स होते हैं, 33 सेकेंडरी किंग्स होते हैं एंड 151 जो है वो पॉसिबल टर्शरी किंग्स होते हैं. ओके. इंडिया में आपको क्लान एक्सोगेमी देखने को मिलती है और एंडोगमी कास्ट एंडोगमी देखने को मिलती है. अब इरावटी कार्वे ने भी क्या किया? किंगशिप को स्टडी किया. ठीक है. तो इरावटी ने क्या किया? कल्चरेशन को स्टडी किया, अकोमोडेशन को स्टडी किया. तो ये हम टॉपिक पढ़ेंगे, हम अलग से कल्चर एंड सिविलाइजेशन को जब हम डिस्कस करेंगे तो उसमें अकोमोडेशन को कल्चरेशन को स्टडी करेंगे. ठीक है. तो उन्होंने कहा कि उन्होंने स्टडी किया. ठीक है. तो उन्होंने किस चीज को स्टडी किया किनशिप में? तो इन्होंने कहा कि दो किनशिप जो है ये लिंग्विस्टिक पैटर्न फॉलो करते हैं. ठीक है. क्योंकि किनशिप और लैंग्वेज जो है वो चलती हैं साथ साथ में, बट कुछ सोसाइटीज़ में लैंग्वेजेस और किनशिप जो है वो साथ साथ में नहीं चलती हैं. तो फॉर एग्जांपल महाराष्ट्र में आपको द्राविडियन इम्पैक्ट देखने को मिलता है. ठीक है. अब जो संस्कृत लैंग्वेज का जो इम्पैक्ट है वो आपको देखने को मिलेगा द्राविडियन किनशिप सिस्टम में. मैरिज जो है वो कास्ट के अंदर ही होती है और ट्राइब के अंदर ही होती है, और मैरिज जो है वो पेरेंट्स में या फिर सिबलिंग्स में जो है वो फॉरबिडन है. तो ये हमने जो कार्वे ने जो स्टडी किया किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इंडिया में, तो 1993 में इन्होंने स्टडी की थी
तो इन्होंने बताया कि हर मतलब एक जैसी यूनिफॉर्मिटी नहीं है, तो हर एक रीजन में जो है एक अलग से पैटर्न फॉलो किया जाता है किनशिप को लेके। तो इन्होंने देखा कि किस तरह से कल्चरेशन हो रही है, अकोमोडेशन हो रही है, उसको भी स्टडी किया, है ना। तो अब इसने कहा कि जो टर्म्स हैं वो किसके बेस पे है, वो लैंग्वेज के टर्म जो है वो यूज़ की हुई है इसमें, किनशिप टर्म्स में। इन्होंने आगे मैरिज को भी स्टडी किया, पैटर्न्स को भी स्टडी किया, मैरिज को भी स्टडी किया, फैमिली को भी स्टडी किया। ओके, तो अब क्या डिफरेंस क्या है, जो नॉर्थ में जो सांस्कृतिक लोग हैं, जहाँ साउथ में जो द्रविडियन लोग हैं, उनमें क्या लोग हैं, उनमें क्या वो किनशिप को कैसे चलाते हैं, वो भी उन्होंने स्टडी किया। तो इन्होंने कहा कि जो है किनशिप जो है वो रफली लैंग्वेज पैटर्न को फॉलो करते हैं। जैसे किस तरह से आपको द्रविडियन का इम्पैक्ट मिल जाएगा महाराष्ट्र में, और नॉर्दर्न में जो है जो संस्कृत लैंग्वेज का इम्पैक्ट है वो द्रविडियन किनशिप में आपको देखने को मिल जाएगा। तो बट कुछ वेरिएशंस हैं, है ना। तो वे वेरिएशंस हैं उनमें, मैरिज पैटर्न में वेरिएशन है, फैमिली सिस्टम में वेरिएशन है, बट इनका कुछ चीज़ें कॉमन ये है कि वो अपने क्लैन में शादी नहीं करेंगे, अपने ट्राइब में ही शादी करेंगे, है ना। तो अपनी कास्ट में ही शादी शादी करेंगे। ओके, तो जो है वो फॉरबिडन होती है, पेरेंट्स और चिल्ड्रन के बीच में मैरिज नहीं हो सकती, और सिबलिंग्स के बीच भी मैरिज नहीं हो सकती, ये भी फॉरबिडन है। तो हमने देखा इरावटी कार्वे ने भी किनशिप ऑर्गेनाइजेशन की स्टडी की। ओके, और जो जीवी मडॉक है उन्होंने बताया कि कुछ 8 जो है वो प्राइमरी किन्स होते हैं, और कुछ 33 सेकेंडरी किन्स होते हैं, और कुछ जो है 151 जो है पॉसिबल टर्शरी किन्स हमें देखने को मिलते हैं। तो ये किनशिप की स्टडी की, मडॉक ने स्टडी की, कार्वे ने स्टडी की। तो क्या क्या उन्होंने पाया, उन्होंने पाया कि लैंग्वेज का इन्फ्लुएंस होता है, बाकी जो इसमें कुछ में तो नहीं होता है। और उन्होंने ये भी पाया कि जो रिलेशन, मैरिज, फैमिली जो है वो मैरिज, जो क्लोज रिलेटिव्स हैं, फादर मदर, फादर और चिल्ड्रन के बीच में मैरिज नहीं होगी, और सिबलिंग्स के बीच आपस में मैरिज नहीं होगी। तो इन्होंने ये स्टडी किया, और इन्होंने ये भी बताया कि किस तरह से कल्चरेशन हो रही है, अकोमोडेशन हो रही है, किस तरह से लैंग्वेज के टर्म्स को यूज़ किया जाता है डिस्क्राइब करने के लिए किनशिप्स को। ठीक है, तो ये मैंने आपको थोड़ा सा बताया कि किस तरह से मडॉक ने स्टडी की, इरावडी कार्वे ने स्टडी की, और एल.एच. मॉर्गन ने स्टडी की, है ना। तो इसमें सिस्टम ऑफ कॉन्सैंग्यूनिटी एंड एफिनिटी ऑफ ह्यूमन फैमिली। और एक और थे, अभी मेरे को उनका नाम याद आया था, मैं पहले आपको कह रहा था कि वो शायद मेरे माइंड से वो आ नहीं रहा। लेवी स्ट्रॉस की एलिमेंट्री स्ट्रक्चर ऑफ किनशिप, लेवी स्ट्रॉस ने एलिमेंट्री स्ट्रक्चर ऑफ किनशिप भी किनशिप के ऊपर स्टडी की, लेवी स्ट्रॉस ने स्टडी की। फिर और इन्होंने मॉर्गन ने स्टडी की, फिर मॉर्डॉक ने स्टडी की, फिर इरावटी कार्वे ने स्टडी की। तो इन चीज़ों को आप अपने आंसर्स में राइट कर सकते हो। ठीक है गाइस। तो अब थोड़ा सा हम पढ़ेंगे फिक्टिटिव किन्स कौन से होते हैं। फिक्टिटिव किन्स ये होते हैं कि जैसे मैं बताऊं आपको, तो अब क्या होता है कि गांव में है, एक गांव में बड़े सारे लोग रह रहे हैं, तो उनको वो आपस में कैसे बिहेव करेंगे, सिस्टर्स ऐसे बिहेव करेंगे, ऐसे सिस्टर्स, और ऐसे ब्रदर्स बिहेव करेंगे। क्योंकि बड़े सारे लोग जो हैं वो हम देखते हैं कि रिलेट होते हैं मैरिज के थ्रू, या फिर बायोलॉजिकल रिलेशनशिप होता है उनमें, है ना। तो उनमें ना तो बायोलॉजिकल रिलेशनशिप होता है, ना बायोलॉजिकल रिलेशनशिप के ऊपर, या फिर जो दूसरे किनशिप जो एफिनल रिलेशनशिप के ऊपर आपने किनशिप तो देखे हैं, लेकिन आप देखोगे गांव में जब लोग यहाँ पे रहते हैं, तो उनमें वो आपस में उनमें कोई बायोलॉजिकल रिलेशनशिप नहीं होता, और कोई उनमें कोई मैरिज का बॉन्ड किसके भी वो नहीं बाइंड होते हैं। बट लेकिन वो क्या करते हैं, वो बिहेव करते हैं फिक्टिटिव किनशिप का, वो एक वो बॉन्ड उनमें होता है, तो वो ऐसे बिहेव करते हैं, ऐसे वो करेंगे, काम करेंगे, जिससे जो है वो उनका बिहेवियर लगे कि वो बाई की तरह है। ओके, जैसे
महापत्रा, फैमिली मैरिज एंड किनशिप, उन्होंने क्या पॉइंट आउट किया, जो फिक्टिटिव किनशिप है तो उन किन्स में भी आपको जो क्या है कि पर्टिकुलर फॉर एग्जांपल नॉर्थ इंडिया में विलेज एक्सोगेमी जो है हम क्या देखते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। तो ब्रदर जो है वो डॉटर इन लॉ गिविंग इन द सेम, अपने रेयर टू फाइंड ए ब्रदर टू ए डॉटर इन लॉ जो है वो गांव में शादी नहीं करते हैं, ठीक है। तो वो जो फिक्टिटिव रिलेशनशिप होते हैं वहां से वो ब्रदर को ले सकते हैं, ठीक है। तो अब ये अर्बन एरियाज में ऐसा नहीं है ना। तो अर्बन एरिया, रूरल एरियाज में ऐसे आपको देखने को फिक्टिटिव रिलेशनशिप देखने को मिल जाएंगे। तो ये था फिक्टिटिव रिलेशनशिप, हमने पढ़ा फिक्टिटिव रिलेशनशिप, हमने पढ़ा कार्वे स्टडी ऑफ किनशिप ऑर्गेनाइजेशन, और किनशिप का बिहेवियर हमने स्टडी किया, और हमने जो किनशिप बिहेवियर है वो भी स्टडी किया, और हमने जो किनशिप की जो टर्मिनोलॉजीज हैं जो मॉर्गन ने स्टडी की वो भी हमने आइडेंटिफाई की। तो हमने जो है हमने डिस्कस किया कि किनशिप टर्मिनोलॉजी डिस्कस की हमने, और हमने इससे पहले हमने जो कंटेम्प्रेरी स्टडीज हुई हैं वो भी हमने डिस्कस किया, और हमने डिस्कस किया कि फॉर्म्स ऑफ जो डिसेंट ग्रुप कौन कौन से होते हैं वो भी हमने डिस्कस किया, तो किन किन सोसाइटीज में होते हैं वो भी हमने डिस्कस किया। हमने टाइप्स ऑफ डिसेंट भी हमने डिस्कस किया, कि उनके एग्जाम्पल्स भी हमने डिस्कस की, किनशिप को हमने डिस्कस किया, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, तो डिग्री क्या है किनशिप को वो भी हमने डिस्कस किया, हमने टाइप्स है किनशिप की वो भी हमने डिस्कस की। तो हमने पढ़ा क्या, किनशिप पढ़ा हमने, कॉन्सैंग्यूनिटी एंड एफिनिटी पढ़ा, प्रिंसिपल्स एंड टाइप्स ऑफ डिसेंट हमने पढ़ा, यूनिलिनियल डिसेंट पढ़ा, डबल डिसेंट पढ़ा, और पैरेलल डिसेंट पढ़ा, बायलेटरल डिसेंट पढ़ा, बिलिनियल डिसेंट पढ़ा, फॉर्म्स ऑफ डिसेंट ग्रुप्स पढ़ा, लीनिएज, क्लैन, देन उसके बाद आता है फ्रैटरी, मोइटी एंड किंडरेड हमने पढ़ा, ठीक है। तो जो टाइप्स होते हैं डिसेंट के वो हमने पढ़े, एक यूनिलिनियल डिसेंट होता है जिसको हम पैट्रिलिनियल डिसेंट बोलते हैं, मैट्रिलिनियल डिसेंट बोलते हैं, एक होता है कॉग्नेटिक डिसेंट जिसमें आता है एम्बिलिनियल, बाइलिनियल डिसेंट आता है जिसमें पैरेलल डिसेंट आता है, ठीक है, जिसमें एम्बिलिनियल डिसेंट आता है और जिसमें बाइलेटरल डिसेंट आता है। बाइलिनियल डिसेंट सबसे पहले आता है, बाइलिनियल डिसेंट सबसे पहले आता है। तो हमने देखा कि किनशिप, और किनशिप में हम जो है हमने मैंने डेफिनेशन भी आपको बताई, है ना। तो रॉबिन फॉक्स ने किनशिप को डिफाइन किया, है ना, कि किस तरह से ये हम बोलते हैं कि सोसाइटी के द्वारा सोशली रिकॉग्नाइज्ड रिलेशनशिप को हम बोलते हैं किनशिप को, जो बायोलॉजिकली रिलेटेड होते हैं या मैरिज के थ्रू भी रिलेटेड होते हैं, ये रॉबिन फॉक्स ने एग्जाम्पल दी। इस पर डीएन मजूमदार ने भी कहा कि ये बाइंड होते हैं वेरियस बॉन्ड्स के जरिए, ये इनमें बॉन्डिंग होती है रिप्रोडक्शन के बेस पे, वो इनमें बॉन्डिंग होती है। तो ब्लड रिलेशनशिप के बेस पे हम कॉन्सैंग्यूनियल किनशिप बोलते हैं, और एफिनल किनशिप होते हैं, दो तरह के किनशिप हमने देखने को मिले हैं, ठीक है गाइस। तो इस वीडियो में हम जहाँ तक ही रखेंगे। तो गाइस चैनल को लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। हमने अभी तक क्या क्या डिस्कस कर लिया है, हमने एंथ्रोपोलॉजी डिस्कस कर ली है, रिलेशनशिप विद अदर डिसिप्लिन वो डिस्कस कर लिए हैं, हमने डिस्कस कर लिया है प्राइमेट्स हमने डिस्कस कर लिए हैं, हमने फाइलोजेनेटिक स्टेटस, जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन, कैरेक्टरिस्टिक्स किसकी, हमने ऑस्ट्रालोपिथेकस की पढ़ी है, हमने हमने होमो इरेक्टस की पढ़ी है, निएंडरथल मैन की पढ़ी है, होमो सैपियंस की हमने पढ़ी है। तो इनकी रेलेवेंस क्या है कंटेम्प्रेरी पीरियड में वो हमने डिस्कस किया है, इनके फॉसिल एविडेंसेस को हमने डिस्कस किया है। फिर हमने पेपर 2 से हमने प्री हिस्टोरिक कल्चर्स को हमने पेपर 1 में भी पढ़ा और पेपर 2 में भी पढ़ा, इंडियन कॉन्टेक्स्ट में पढ़ दिया पेपर 2 में, और पेपर 1 में हमने वर्ल्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा, कैसे कौन सी स्टोन टूल इंडस्ट्रीज आई, डिफरेंट हमने जो है क्रोनोलॉजी को हमने डिस्कस किया, हमने जियोलॉजिकल टाइम स्केल को हमने डिस्कस किया, ठीक है। फिर हमने डिस्कस किया था मैरिज को डिस्कस किया हमने, फैमिली को डिस्कस किया हमने, ठीक है, डिफरेंट टाइप्स क्या होती हैं, लॉस क्या होते हैं, इंपॉर्टेंस क्या है, फंक्शंस क्या है। फिर हमने डिस्कस कर दिया किनशिप को, किनशिप आपको क्या है, इसकी टर्मिनोलॉजीज क्या है, टाइप्स ऑफ किनशिप क्या है, ठीक है, आपको किस तरह से ये कैसी इंपॉर्टेंस है, किस तरह से आप अपना बिहेवियर को रेगुलेट करते हैं,
तो इसकी रेलेवेंस क्या है कंटेम्प्रेरी सोसाइटीज़ में, मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेटर्स के लिए वो यहाँ से वो कैसे इस नॉलेज को अप्लाई कर सकता है एडमिनिस्ट्रेटर अपने फील्ड वर्क में, अपने अपनी जॉब में, है ना। कैसे, अगर जरूरी नहीं कि ट्राइबल एरिया में पोस्टिंग अगर होती है तो वो ट्राइबल्स की पॉपुलेशन को अच्छे से वो स्टडी कर सकता है, वो कल्चर रिलेटिविज्म के थ्रू वो कल्चर को स्टडी कर सकता है। वो जरूरी नहीं वो कंटेम्प्रेरी सोसाइटीज़, रूरल सोसाइटीज़ को स्टडी कर सकता है, पीजेंट की सोसाइटीज़ को स्टडी कर सकता है, एग्रीकल्चर सोसाइटीज़ को कर सकता है, इनमें क्या इश्यूज हैं, इनकी सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस क्या हैं, उन चीज़ों को डिस्कस कर सकता है। और जब हम इन चीज़ों को डिस्कस करते हैं, इन चीज़ों को पढ़ते हैं, तो हमारा हॉराइजन जो है वो ब्रॉड हो जाता है, हमें होलिस्टिक स्टडी हो जाती है, और हम एक कॉन्फिडेंट, एक नॉलेजेबल और एक हम एडमिनिस्ट्रेटर की तरह हम बिहेव करते हैं, और हम चीज़ों को बेटर तरीके से, अच्छे तरीके से स्टडी करने की कोशिश करते हैं। तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक्स गाइस।